Would you like to help, Garima? Again, Savita, would you like to summarize little bit? सर अभी तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे डीपली मैंने पढ़ा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि सर फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होना चाहिए, एंड सेकंड लैंग्वेज आवर रीजनल लैंग्वेज, एंड थर्ड जो होना चाहिए वो सर कोई भी एनी फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज में सर इंग्लिश भी हो सकता है, जर्मन भी हो सकता है, चाइनीज एंड मतलब कोई भी फॉरेन लैंग्वेज Okay, हो सकता okay, है। Savita. Now I'm giving chance to you. You can ask any question from any of the member. किसी member से आप question put up कर सकते हैं of your choice. सर Online, offline, your choice. यस सर, माय क्वेश्चन इज टू ममता मैम। Mamta madam, get ready. yes, sir. Hello, Mamta ma'am. Ma'am, my Hi, question ma'am. is, what was the literacy rate according to census 2011, and what is the current literacy rate? Recent survey, according to recent survey, has literacy rate is increased or decreased? If increase or decrease, then what is the reason? Thank you, ma'am. First of all, as per 2011 census, our literacy rate is I think 74 to 75, in between that only. But recently, exactly, I don't know, ma'am. Ma'am, 80 Recent to 80, survey. 80 ma'am, 80 to Um, 82%. okay, ma'am. So Recently. literacy rate is increased. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is the reason? What is the reason literacy rate of India has increased? Okay, ma'am. The reasons are the policies are implemented by the government, ma'am. If you observe midday meal scheme that was implemented by the government, already we have discussed about the Beti Bachao, Beti Padhao because of that. And also from disadvantaged groups, the government is providing scholarships and providing hostel facilities. And all those are helping to the students to improve the literacy rate, ma'am. If you observe, just now we have talked about the NEP 2020 three language policy also, and that is also one of the advantage for the students, ma'am. From the rural background, up to fifth class, they can take two languages, mother tongue and along with English or anyone. From sixth grade onwards, eighth grade, we are following already three language policy. But ninth to 10th grade, the three language policy is not there, but recently, the government has introduced the three language policy that has to be implemented from the 1st July 2026. If we observe from 1964, in that time, the Kothari Commission was appointed for the education system. That commission itself suggested the three language policy that was supported by the Indira Gandhi government and also Rajiv Gandhi government. Later in 1990s, the PV Narasimha Rao government is also supported by that. And recently, if you observe National Education Policy 2020, this was suggested by the Kasturi Rangan Committee. This committee has also suggested the three language policy. Why? Because our country is a vast, diverse country. We are having so many languages. As per Constitution, under the Scheduled 8th, we have 22 official languages, 22 languages recognized by the Constitution. Presently, what we are, and also if you remember, three languages means one is regional language or and another one is mother tongue, and English here it is considered as a global language. And here regional language means, as Poonam ma'am said, Poonam ma'am's mother tongue is Hindi, but my mother tongue is Telugu. That means I have take Telugu as one of my language, and English is it already as a global language, and I can take Hindi or Tamil or Kannada or any other language as third language. This is the main intention of the government. And also here we have to remember one more thing also. Under the Article 351, it is the duty of the government to promote the Hindi language, not to impose the Hindi language. It is the duty of the government to promote Hindi language. Because of that, the government has introduced three language policy. But if you observe some states, especially southern states, especially Tamil Nadu, it is against to the three language policy. Because of that, we cannot see any one NVS school in Tamil Nadu. Out of 661 schools, only 653 schools are running. There is no NVS school in Tamil Nadu. Why? Because of they are against to the Hindi language.
Why? Because they are feeling central government is imposing the Hindi language on the southern states. So that's why they are not ready to conduct the or they are not organizing the NVS schools. But this is helpful to the country. Why? Because if I will come to northern side, if I know the Hindi language, I can easily communicate. Now in our class also, little bit I can understand, but I cannot understand completely. If I learn Hindi also, it will be very better for me and southern students also, ma'am, because of But the madam, you government has should be introduced. feel happy and proud that everybody listen you in English. They appreciate your English. You can ask from everybody. They are waiting that when you start. And today, what points you have added in Punam words, really, it was really appreciable. You have given the right points again. Really useful points you have given. Thank you, sir. Okay? We appreciate Thank you, you sir. for Thank that. you, sir. ओके मैडम, सिंस मनीषा का आज फर्स्ट डे है, तो मनीषा, हाउ आर यू फीलिंग विद पीटी क्लासेस? कैसा लग रहा है हम सबके साथ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पक्का मनीषा? यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा आप नई जगह पर आए हैं? नहीं सर, अपने घर जैसा लग रहा है, प्रॉमिस? जी सर। ओके, ये बात अच्छी है। बीइंग इतनी दूर से आप, भाई कोई पर्सन आता है तो हमारा फर्ज है, और हॉस्पिटैलिटी इज वेरी नेसेसरी, राइट पूनम? somebody comes then it is our responsibility कि जब मनीषा जी यहाँ से जाए तो इतने स्ट्रांग होके जाए, इनके हस्बैंड करे अरे मैंने तो कैट भेजी थी, ये तो टाइगरस बन के आ गई, अरे वाह क्या बात है। मींस उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ओके, तो मुझे ऐसा स्ट्रांग करना है मनीषा को कि लगना चाहिए कि हरियाणा की लड़की बहुत स्ट्रांग बन के गई है। ओके, बन जाओगी मैडम? यस ऑफ कोर्स। और यस मिस्टर नारायण, हाउ आर यू? यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़? जी सर। वेरी गुड। तो यू आर अ कंप्यूटर लिटरेट। मैं चाहता हूं आप भी ममता जी मैडम की तरह बिल्कुल एवन। और आज पूनम मैडम, वन मोर, पूजा इज मिसिंग, शिवानी इज मिसिंग, अदरवाइज वो लोग भी बहुत शार्पन है, उनका कम्युनिकेशन और वो भी बड़े स्ट्रांग है। ओके, तो आप उनके साथ कॉम्पीट करना और अपने आप को फ्लरिश करना। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। चलिए, मेरी ब्लेसिंग्स आपको, और मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ में आप नाम कमाओ, है ना? देयर वॉज अ गर्ल आई थिंक फ्रॉम छत्तीसगढ़, हर नेम वो ज्योति जी, 2024 या 19 की बात होगी, एंड शी गॉट सेलेक्टेड। आई शो यू द वेयर शी बिलोंग और एवरीथिंग। तो मैं चाहता हूं आपका भी नाम इसी तरीके से गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाए। ओके, चलिए अब भाई मैं चांस दे रहा हूं यहां पर घनश्याम जी को। बहुत चुप रहते हैं और छोटा सा आंसर देकर साइड में हो जाते हैं। तो घनश्याम जी, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बोलना शुरू किया, ये बहुत अच्छा किया कि आप आना शुरू कर दिया, कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, मगर अभी भी है ना कहीं आंसरिंग में थोड़ा कम है, क्योंकि देखो सिचुएशन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है। तो सबसे पहले तो घनश्याम को चांस देते हैं कि आप किससे क्वेश्चन पूछना चाहोगे। घनश्याम जी बोलिए, whom do you want to ask? सर मैं सविता मैम जी से। अरे वाह भाई, सब हेलो। जने सविता मैडम से क्वेश्चन पूछते हैं, रेखा मैडम से कोई नहीं पूछता। रेखा भी तो वेट करती है, मंजीत मैडम भी तो वहां बैठे हैं, इसीलिए रेखा मैं बोलता हूं यार, रेखा लिखवाओ फटाफट। ये लोगों को जो दिखता है ना, बस नाम फटाफट बोल देते, 1 सेकंड में बोल देते हैं, ये वेट नहीं करते। चलिए, नो प्रॉब्लम। सविता जी बहुत अच्छा लगा, गेट रेडी। यस मिस्टर घनश्याम, स्टार्ट। जी मैम, कॉम्पिटेंसी बेस पे एजुकेशन के बारे में आप क्या जानते? यस सर। कॉम्पिटेंसी बेस। यस सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मीन्स जैसे कि कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। लाइक अगर हमको बच्चे को एट प्राइमरी लेवल अगर हम बच्चे को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझा रहे हैं, तो उसको रियल लाइफ में क्या यूज कर रहा है, वो रियल लाइफ में कितना वो उस चीज को यूज कर रहा है, ये डिसाइड करना है। लाइक अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन समझा दिए, बच्चा किसी शॉप पे जा रहा है, उसको हम 20 रुपीज दिए, और वो सिर्फ और जो शॉपकीपर है उसको 5 रुपये लेके वापस भेज दिया। बट एट दिस टाइम चिल्ड्रन डोंट नो कि कितना रुपया मिलना चाहिए। तो इस लेवल पे हम लोग को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा रियल लाइफ में उस चीज का यूज कर सके, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, अकॉर्डिंग टू मी। किसी भी स्किल का अपडेट वर्जन ही वो कॉम्पिटेंसी एजुकेशन है। सही बात। जैसे मैथ में कि परसेंटेज में कराते हैं मैथ के सर, तो वो अपने बेस पर उसके हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व करता है, फिर उसका स्किल डेवलप हो गया, उसका अपडेट वर्जन रियल लाइफ में लेता है, वो मार्केट में जाता है, किसी भी डिस्काउंट को अपने इम्प्लीमेंट करता है,
फिर उसके अकॉर्डिंग वो खरीदारी करता है। तो ये इसका रियल लाइफ में हो गया। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। पूनम वांट टू ऐड समथिंग, शी इज रेजिंग अ हैंड। यस पूनम जी बोलिए, शाबाश। For sharing the answer, I would like to share that I am belong to Chhattisgarh. Hello, यस पूनम। Narayan sir. Okay, sir. Sir, are you getting my voice properly यस right now? यस, नाउ वी आर गेटिंग, प्लीज बी फास्ट। 1 minute, Okay, 2 minutes, sir. फास्ट। To share something about competency-based learning. That means बच्चों की capability, according to the ability and capability of the students, we have to teach them. Just like I have to teach them the topic of sentences, types of sentences. In that time, before writing any sentence, I should know that they know about the words and their arrangements or not. And before sharing the words, they know about the vowels and consonants. After sharing the basic concept, we have to move to the advanced concept. In the classroom, we have to variety of students and the diversity of the students. And by facing them and by involving them into the activity, we have to teach them different topics. And their understanding level already has been different, as we know. And different varieties of students coming from different backgrounds. Some of them they have very literate parents, and some of them they have belong to the agriculture field. In that time, we have to understand the need of the students. Thank you, sir. वेरी गुड। नाउ टॉकिंग विद मनीषा। मनीषा, योर टॉपिक इज संस्कृत। तो संस्कृत में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका फेवरेट राइटर कौन है मनीषा? सर कालिदास। ओके, तो कालिदास जी के बारे में कुछ, कोई उनकी कहीं भी कोई बात या कोई अच्छी कुछ बताइए, ताकि ये भी मोटिवेट हो सब जने। कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जिसकी वजह से वो आपके फेवरेट हुए हो। सर उनका अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो बहुत अच्छा नाटक है। ओके। उसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है कि किस तरह से वो मिले आश्रम में, और फिर आगे उनका विवाह हुआ, गांधर्व विवाह के हुआ था उनका। और फिर उसके बाद दुष्यंत वापिस अपने नगर में चला गया था, और उसके बाद दुर्वासा ऋषि आए थे आश्रम में। तो उनका सत्कार ना करने के कारण शकुंतला को उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके कारण तुम मेरा अपमान कर रही हो, राइट। उसी वही तुम्हें भूल जाएगा, वो याद नहीं करेगा। ओके। फिर उसके बाद जो आश्रम में उनकी सखिया थी, वो गई थी उनके पास कि श्राप से मुक्ति दो, वो आपकी ही बेटी है। तो उन्होंने कहा मैं अपने कहे हुए वचन वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि उसके द्वारा दिया गया कुछ भी आप आभूषण है वो दिखाओगे तो उसे फिर से याद आ जाएगा। तो दुष्यंत उनको अपने नाम की अंगूठी देकर गया था शकुंतला को, और वो अंगूठी दिखाकर ही उनका श्राप था उससे मुक्ति मिल सकती थी उनको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो घनश्याम जी, जब वाइफ आपकी पियर जाए तो ध्यान रखना, आप जब उनको लेने जाओ तो अंगूठी लेके जाना, ठीक है, अच्छे से। चल, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लेस देन 1 मिनट है, तो इसी तरीके से स्माइलिंग फेस चाहिए मुझे। मंजीत मैडम ने स्माइल नहीं करी अभी तक। मंजीत मैडम हैव अ स्माइलिंग फेस। हाँ, यहाँ पर भी सब बच्चों का स्माइलिंग फेस चाहिए मुझे, एवरीबडी आई वांट, ठीक है। और आई वांट ऑल योर पार्टिसिपेशंस। और वाकई में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा आप सबका। कॉम्प्लीमेंट्री में आप इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, ओके। और मनीषा, फर्स्ट डे आपने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये बहुत अच्छा लगा। और नारायण भी पूरा एक्टिवली, ठीक है नारायण जी, कल मोर क्वेश्चंस लेकर आने आपको, ठीक है ना। खूब क्वेश्चंस पूछना आप, सिर्फ ममता जी से नहीं पूछेंगे आप, ध्यान रखना। यू शुड आस्क फ्रॉम एवरीबॉडी, ठीक है ना। हाँ, वहां पर सब लोग हैं, आप तो ममता जी से पूछ रहे थे। ममता मैडम आप भी ध्यान रखना, ही शुड आस्क फ्रॉम एवरीबॉडी, ओके। और आप जरूर इनसे पूछना, आई वांट यू, आप जरूर एक क्वेश्चन लेकर आना इनके लिए। और हार्ड लेकर आना मैडम, कंप्यूटर का लाउच है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए, बाय बाय एवरीबॉडी, एक बार बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय। ओके, टेक केयर, बेस्ट विशेस।